السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج نیو یارک پہنچ رہے ہیں۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نیو یارک میں قیام کے دوران وزیر اعظم پائیدار ترقی، امن و سلامتی اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثوں میں بھی شرکت کریں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی وزیر اعظم کے شیڈیول کا حصہ۔ شہباز شریف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی طرف سے دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ دورہ امریکہ میں وزیر اعظم مختلف عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی پروقار تقریب۔ صدر آصف علی زرداری، وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی گورنرز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ویژن مثالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کے قومی دن پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام کو مبارکباد۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مختلف شعبوں میں مثالی تعلقات۔ دونوں ملک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا سعودی عرب کے قومی دن پر تقریب سے خطاب۔ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، پاک چین دوستی زندہ باد۔ صدر شی جن پنگ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ مستقبل کے لیے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنائیں گے۔ دونوں ملک کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک شراکت دار۔ چین کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام تہنیتی خط، سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک ڈی جی ISI تعینات، 30 ستمبر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کمان اور سٹاف کے وسیع تجربے کے حامل۔ بلوچستان میں انفنٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفنٹری بریگیڈ کی کمان کی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں انسٹرکٹر رہے۔ فورٹ لیونورتھ اور رائل ڈیفنس کالج کے گریجویٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور۔ پاک امریکہ تجارت میں بے پناہ صلاحیت، بھرپور استفادہ وقت کی ضرورت، مریم نواز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں اجلاس۔ آئینی عدالت سے متعلق پارٹی کے موقف پر مبنی نکات پر غور۔ آصفہ بھٹو زرداری اور شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سمیت دیگر رہنما بھی اجلاس میں شریک۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق، یہ اختیار سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ عدالتی فیصلے کون کیا مانگنے آیا ہے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی۔ قانون کے تحت ریلیف فریق کو ہی ملتا ہے۔ آزاد رکن 3 دن میں کسی بھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ شمولیت کا یہ عمل ناقابل واپسی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 30 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق کیس بھی مقرر۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل۔
पी टी आई का एजेंडा कौमी इदारों को कमजोर करना है। पाकिस्तान की एटमी ताकत सेहोनी लॉबी का दर्द सर है। इसराइली अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक बानी पी टी आई इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे ले जा सकते हैं। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तलात नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी। मौलाना फजलुर रहमान का बानी पीटीआई और यहूदी लॉबी के गहरे मरासिम से मुतालिक ठोस मौक़िफ़। साल साल से जो कहा इसराइली अखबारात ने उसकी तस्दीक कर दी। अब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इस्तदलाल। पीटीआई तो वोट मांगने ही आएगी, अवाम जाने और तब्दीली का अंजाम जाने। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरजीह, सियासत और घोड़ों का स्तबल। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत आमा का शोबा तबाह, अस्पतालों में अद्वियात नहीं। पीटीआई हुकूमत बेहिस, मलेरिया बेकाबू, अस्पताल मरीजों से भर गए। इलाज और हिफाजती इकदामात जीरो। मलेरिया के 54,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वजीर आला के आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में भी 4,000 से ज्यादा मरीज। सूबाई हुकूमत वबा को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। दावे बड़े, कारकर्दगी सिफर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के बाद तालीम का शोबा भी निशाने पर। बड़े अस्पताल बेचने के बाद अब स्कूल्स की बारी। निजी शोबा प्राइमरी स्कूल्स की बोली लगाएगा। असातिज़ा सरापा एहतजाज। हुकूमत की कोशिशें बराबर। मईशत मुस्तहकम होने लगी, महंगाई में कमी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल कई माह से मुस्तहकम। पाकिस्तानी बरामदात में रिकॉर्ड 14% तक इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2024 की बेहतरीन मार्केट का एजाज हासिल। आलमी मातियात इदारों का उभरती पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। न्यूयॉर्क में कश्मीरी और सिख सरापा एहतजाज। एहतजाजी मुजाहिरे, हजारों अफराद सड़कों पर उमड़ आए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के हक में नारे। आज़ादी की तहरीकें मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी, शुरका का अज़्म। लेबनान में इस्राएली हमलों में शिद्दत आ गई। सेहोनी तैयारों के 90 से जायद हमले, 274 अफराद जाँ बहक, 727 जख्मी। वादी बका पर भई इस्राएली फजाई हमलों की तलात। मुजाहिमतकारों के शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले, फौजी अड्डों को निशाना बनाया। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 3 अक्टूबर से करेगा। पहला टाकरा श्रीलंका से होगा। इवेंट से कबल कौमी टीम 2 वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। और पाकिस्तान के असजद इकबाल 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मंगोलिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में मेजबान मुल्क के क्वेस्ट को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज रात न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। न्यूयॉर्क में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पायदार तरक्की, अमन सलामती और मौसमी तब्दीली से मुतालिक आला सतह मुबाहिसों में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल का हिस्सा हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे असद जार खान।
अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से कलीदी खिताब में आलमी अमन सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हमायत का इयादा करेंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे में मसला फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के तनाज़े समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर भी जोर देंगे। वज़ीर आज़म पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतल्लिक SDG मूवमेंट 2024 और सलामती कौंसिल के तहत लीडरशिप फॉर पीस के मौजू पर आला सतह मुबाहिसों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सतह समुंदर में इजाफे से पैदा होने वाले मुमकिना खतरात के हवाले से आला सतह इजलास में शिरकत और गुफ्तगू भी करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ मुलाकात में उनको हुकूमत की कारोबार व सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, जनरल असम्बली के सदर फिलिमोन योंग और यूरोपियन कमीशन की सदर से मुलाकातें भी तय हैं। गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स, आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से ख़ुसूसी मुलाकात होगी, जिसमें फ़लस्तीन में जारी सेहूनी ज़ुल्म जबर को रोकने और आलमी बिरादरी के इस ज़िमन में इक़दामात को तेज करने के हवाले से मुशावरत होगी। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी तय हैं। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के सामने मौसमियाती तब्दीली के खतरे से दो चार ममालिक के मसाइल, पाकिस्तान की खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ, आलमी माशी निज़ाम और मकरूज ममालिक के मसाइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे व जुल्म जबर और इसराइल की जानिब से नहते फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम के हवाले से भी बात होगी। वज़ीर आज़म ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान की जानिब से ब्रुनाई के अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के 40 साल मुकम्मल होने पर दिए जाने वाले ज़ोराने और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 वर्ष मुकम्मल होने पर दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे तसव्वुर अरफात न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तसव्वुर, बताइएगा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस दौरे की अहमियत और अहम मसरूफियात क्या रहेंगी? जी रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम जो है न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 6 बजे यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, और उसके बाद आज का दिन उनका शाम काफ़ी क्वाइट होगी, और कल से उनकी जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, एंगेजमेंट्स हैं, वो स्टार्ट होंगी यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो उनका जो सबसे अहम खिताब है वो 27 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले उनकी अहम मीटिंग्स हैं। मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो यहाँ पे न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है, और साथ साथ टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, फ़लस्तीन के जो सदर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इन सारी मुलाकात का जो टर्की और फ़लस्तीन के सदर के साथ मुलाकातें होंगी, इनमें ज़्यादा फोकस जो है उनका गज़ा में जो इसराइल की बर्बरियत है उनका वो फोकस होगा, और उस पर अपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। और इसी तरह इससे पहले जितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें OIC हो, बाकी इंटरनेशनल फोरम हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के हवाले से और जो इसराइल की बर्बरियत है उस हवाले से खुलकर बयान करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के इजलास में भी उनकी जो स्पीच है उसका महवर जो है वो 3 चीज़ों पर होगा। सबसे पहले जो गज़ा में फ़लस्तीन की तरफ से जारी बर्बरियत का उस पर, सेकंड में मौसमियाती जो तब्दीली के क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं पूरी दुनिया में उस पर, और इससे हट के जो पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से जो तरक्की और जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है शारिये मुस्बत हो रहे हैं उस तरह उनका फोकस होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है, जो कि पाकिस्तान मिशन ने यहाँ पे अरेंज की हुई है। उसमें पाकिस्तान के जो बैंकर्स हैं जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं,
ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کمیونٹی جو ہے ان کی ملاقاتیں بھی یہاں پہ مشن میں ان کے ساتھ متوقع ہیں. اور یہ سارا جو میٹنگز ہیں ان کا محور ایک ہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے اور جو پاکستان معیشت میں بہتری جو ہے اس میں, اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کو انوائٹ کرنا, اور اس لحاظ سے وہ ان کو بریف کریں گے. اس کے علاوہ جو اینڈ پہ 27 کا دن ہے وہ بہت اہم ہے. صبح پاکستانی جو ہے ٹائم کے مطابق شام تقریباً 6-7 کے بیچ میں وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی سے خطاب کریں گے. اس سے پہلے یہاں پہ نیو یارک میں اس وقت 9:15 کا ٹائم ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ دوسرا ایڈریس ہوگا, دوسرے نمبر پہ جو وہ ایڈریس اپنا یہاں پہ ڈیلیور کریں گے, اور پاکستان میں تقریباً 6 سے 7 بجے کا ٹائم ہوگا. اس سپیچ میں بھی اہم جو ان کا ایجنڈا ہوگا, اہم جو سپیچ تیار کی گئی ہے اس میں کشمیر جو ہے وہ سب سے اہم, کشمیر میں جو بھارت کی طرف سے بربریت اور دہشت گردی کی جا رہی ہے وہ فوکس ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کی سپیچ کا. اس کے بعد وہاں پہ بھی غازہ کی جو صورتحال ہے اس پہ, اسرائیل کی جو دہشت گردی اور بربریت ہے اس پہ وہ بات چیت کریں گے. اور اس کے ہٹ کے کلائمیٹ چینج میں جو ان کے کلائمیٹ چینج کی صورتحال اور پاکستان میں جو گزشتہ 2-3 سال سے سیلاب آتے رہے ہیں اس حوالے سے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ جو ہیں ان کی سپیچ کا فوکس وہی ہوگا. اور اس سے ہٹ کے وہ پاکستان کی جو اوورآل صورتحال ہے, معاشی جو اشاریہ بہتر ہوئے ہیں اس پہ بھی سارا اپنا فوکس کریں گے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور پوری دنیا کو وہ انویسٹمنٹ اور دوسرے پرپز میں دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے انوائٹ کریں گے. جی تصور آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں وزیر اعظم کی کیا مصروفیات رہیں گی, اس دورے کی کیا اہمیت ہے, بلکہ بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے وہ بھی آپ نے آلریڈی کور کیے. ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کون کون سے وفاقی وزراء اس اہم دورے پر وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں؟ جی, جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ اس وقت جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں. اس کے علاوہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں نیو یارک میں. یہ سارے لوگ جو ہیں کمرشل فلائٹ سے وزیر اعظم سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکے تھے, اور یہاں پہ آ کے جو ان کی پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو میٹنگز ہیں وہ جو طے ہونی ہیں IMF اور باقی ڈیلیگیشن ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ, اس پہ وہ اپنا کام جو ہے فارن آفس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے جو اگر بات کریں تو وفاقی وزیر تعلیم جو ہے خالد مقبول صدیقی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے, اور وزیر اعظم کے معاون جو ہیں طارق فاطمی وہ بھی جو انٹرنیشنل میٹنگز ہیں ہیڈ آف ڈیلیگیٹس کے ساتھ اس حوالے سے وہ 2 دن سے یہاں پہ نیو یارک میں موجود ہیں, اور وہ ساری میٹنگز وغیرہ اور چیزیں ترتیب کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں اپنی ایکٹیویٹیز جو اپنا وقت ہے اسے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر کے تمام ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ ملاقات کر سکیں. اور یہ لوگ یہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر دفاع جو حاج آصف ہیں وہ بھی یہاں پہ نیو یارک میں کل شام سے پہنچ چکے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وزیر اعظم کو آج ریسیو بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری میٹنگز ہیں ان کا حصہ ہوں گے, اور اپنا پاکستان کے جو موقف ہے اور پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ کے ساتھ ان کے جو ڈیلیگیٹس کے ساتھ میٹنگز ہوں گی ان کے ساتھ. بہت شکریہ تصور عرفات, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اس دورے کی اہمیت. یونائٹڈ نیشنز کا ہونے والا جنرل اسمبلی کا اجلاس, اس میں پاکستان کا موقف وزیر اعظم محمد شہباز شریف پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے. یقین ہے کہ معیشت, دفاع سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اس تقریب میں وفاقی وزراء, وزیر اعلیٰ مریم نواز, صوبائی گورنرز, ارکان پارلیمنٹ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کیا ہے. تجارت, کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے. Pakistan and Saudi Arabia throughout history have stood by each other in challenging times. The people of Pakistan are deeply thankful to the kingdom for its support during difficult periods. Pakistan remains committed to further strengthening bilateral cooperation with Saudi Arabia in all areas of mutual interest. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ویڈیو پیغام میں سعودی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات قابل ستائش ہیں. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared values,
and enduring friendship that have stood the test of times through all these years. This relation is unique and goes beyond common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other in times of need, standing in solidarity during natural disasters and crisis, reflecting the depth of the fraternal bond that exists between the two countries. सऊदी सफ़ीर नवाब सईद बिन अल-मालिकी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात हमारी पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहेंगे. سعودي عرب اور باكستان كدرميان مضبوط تاريخي اور بردرنا تعلقاتي دنو بردر ممالك كدرميان مذهبي سياسي عسكري ثقافتي أو سفارتي تعلقات كي ايك طويل أو فخرية تاريخي دنو ممالك كي تعلقات خالص إسلامي بهائي شارية أو محبة بر مبنيه. चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद दी है. चीन के सदर की जानिब से खुसूसी तौर पर भेजा गया मुबारकबाद का खत पाक चीन सफारती ताल्लुकात की मजबूती की जानिब एक गैर मामूली पेशरफ्त है. अपने मुबारकबाद के खत में सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कहा कि आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं. तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया. दोनों मुल्कों के माबैन ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैन अल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ. चीन के सदर ने लिखा कि रवा बरस जून में आपने चीन का कामयाब दौरा किया जिसमें हमारे माबैन खुशगवार तबादला ख्याल हुआ और मुतअद्दिद उमूर पर इत्तिफाक हुआ. उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है. आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और सी पैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ. सदर शी जिनपिंग का कहना था कि आपके साथ मिलकर मुतअद्दिद शोबों में ताउन और इस जदीद दौर में दोनों मुल्कों के लोगों के माबैन गहरे ताल्लुकात से एक मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए काम करने का ख्वाह हूँ. उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना का भी इजहार किया. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया है. समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आपके काबिल कदर जज्बात पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान ताउन पर मबनी आजमूदा तज़वीराती शराकतदारी और मजबूत दोस्ती का मज़हर हैं. वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के अवाम के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का भी अयादा किया. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर इसकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी है. अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है और आज के दौर में सऊदी अरब कारोबार, टेक्नोलॉजी, मईशत और दीगर शोबों में तरक्की पजीर ममालिक की क़यादत कर रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती इक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तमाम मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दिया है. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब के ताउन के लिए पूरी कौम मशकूर है. पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में मुलाकात की. मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई. वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका तिजारत में मकामी और आलमी सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं. मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मेयार कायम किए हैं और माजी के मुकाबले में मुल्क ज़्यादा महफूज और पुरअमन है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं. अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की. वज़ीर आला ने चीनी कौंसल जनरल यांग शेनी से मुलाकात की और चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी. मरियम नवाज ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरी दोस्ती को रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक करार दिया.
वज़ीर आला ने कहा कि चीन की कामयाबियां हमारे लिए भी हौसला अफजा और काबिल तकलीद हैं। दोनों ममालिक खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। मरियम नवाज ने कहा कि कोविड जैसी वबाई बीमारी हो या कुदरती आफात, चीन ने इजहार यकजहती करते हुए ज़रूरतमंद ममालिक के लिए वसाइल मुहैया किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर चीन ने हमेशा अमन व तरक्की को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद करार दिया। चीन के काउंसल जनरल याओ शीरी ने अपने खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम दोस्त इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब अवाम के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, चीनी काउंसल जनरल और दीगर ने मिलकर अवामी जमहूरिया चीन की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा। तकरीब में चीनी फनकारों ने रिवायती चीनी सकाफती फ़न का भी मुजाहरा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का तल्लक 80वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। बलोच रेजिमेंट से अपने फौजी करियर का आगाज किया। उनका ताल्लुक फौजी घराने से है। नामजद DGISI इस वक्त GHQ रावलपिंडी में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अपने कोर्स में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ अमेरिका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज बरतानिया के ग्रेजुएट भी हैं। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पार्टी के तर्जुमानों का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत से मुतालिक पार्टी मौक़िफ़ के बारे में आगाह किया। आसिफा भुट्टो जरदारी और PPP शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में शेर रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, चौधरी मंजूर और दूसरे अफराद ने शिरकत की। इजलास में आजिज़ थामरा, मूसा गिलानी, नबील गबोल, नवाबजादा इफ्तिखार, शर्मिला फारूकी, शहला रजा, सरबरन खान, जोगिज़ई भी शरीक हुए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस की 30 सितंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच पे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल शामिल हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रुकने असेंबली नाअहल हो जाएगा और इसका वोट भी शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जजेस कमेटी के इजलास में केस की समाअत का फैसला किया गया। इजलास में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का तहरीर करदा फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि आवाम की मंशा और जमहूरियत के तसलसल के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और साफ और शफाफ इंतखाबात का जिम्मेदार है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन के मुनाफी है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में PTI फरीक नहीं थी। कानून के तहत रिलीफ उसी को मिलता है जो फरीक हो। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। कानून के वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस तहरीक इंसाफ का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क का कानून है तो दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। फरीकैन को सुन लिया जाता तो ये अबहाम दूर हो जाता। ये जो प्रोसीडिंग्स की नेचर थी, इसमें तो 185(3) होने की वजह से इसमें CPC अप्लाई करता है, यानी कि पार्टीज कोर्ट के सामने कौन सी हैं, कौन रिलीफ मांगने आया है, किसने अपना मुकदमा दायर कर रखा है और प्रेयर क्या है, इस्तदा क्या की है, तो उसके अंदर रह के ये फैसले होते हैं। तो ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस है मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के,
جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے. پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار ہے وہ کلی ہے، اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمان کی قانون سازی ہے، لیجسلیچر کی طرف سے بنایا گیا قانون، وہ ان فیصلوں پہ فائق ہوگا. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی نظر ثانی کی درخواستیں ابھی غیر مؤثر نہیں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. آزاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت کے بعد وفاداری تبدیل نہیں ہو سکتی. آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی منشا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد 3 روز کے اندر، اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو 3 روز کے اندر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اور وہ irreversible ہے اب قانون کے تحت. آئین کا آرٹیکل 51 کہتا بھی یہ ہے کہ جو تقسیم ہوگی سیٹوں کی وہ قانون کے مطابق ہوگی. ریویو اپلیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کی پڑی ہوئی ہیں اور بڑی ویلڈ گراؤنڈز پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آج کے تفصیلی فیصلہ نے ان نظر ثانی کی درخواستوں کو اور زیادہ تقویت دے دی ہے. آئینی ترامیم کے بارے میں سوال کے جواب میں وزیر قانون نے کہا کہ ان ترامیم کا ایک پورا پس منظر ہے جن کا بنیادی مقصد زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کرنا اور عوام کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز پر قانون کے مطابق عمل ہوگا، جس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کو اپنے اپنے سیاسی خول سے باہر نکل کر آئین کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ آئین میں پارلیمان، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے سیاسی خول سے باہر نکلیں. میری یہ درخواست حکومت سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست اپوزیشن کے اراکین سے بھی ہوگی، میری یہ درخواست مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت سے بھی ہوگی. میں نے ان کی اس دن بات سنی، انہوں نے کہا میرے کچھ تحفظات ہیں، خدشات ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی اے اور بی اور فار دا گورنمنٹس کنٹینیوٹی پر کی گئی ترامیم کا ان کا جو موقف ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حلف لیا ہے آئین کا تحفظ کرنے کے لیے، تو جو آپ کے اس آئین کے تحفظ میں سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے فاؤنڈیشنز کو تو کریکٹ کر لیں، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. اسی ضمن میں نے یہ خط الیکشن کمیشن کو لکھا، اور ان کو خط لکھ کر میں نے یہ ان سے درخواست کی کہ آپ ایکٹ کریں ان اکارڈنس ود لا. اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، جہاں آج پروفٹ ٹیکنگ کے باعث اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا. دوسری جانب معاشی ماہرین نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی ٹھوس اقدامات کو سراہا. رپورٹ کریں گے محمد زبیر الدین. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ دنوں مسلسل 6 بار مثبت سیشنز میں 2700 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے دن آج پروفٹ ٹیکنگ کا رجحان رہا، جسے اسٹاک ایکسچینج کے تجزیہ کار 100 انڈیکس میں سرمایہ کاری کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھنے کے بعد 100 انڈیکس میں پروفٹ ٹیکنگ کا عمل مزید حصص کی خریداری کا سبب بنتا ہے. لاسٹ ویک پاکستان اسٹاک مارکیٹ لیے بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہا، اراؤنڈ 2700 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا ہم نے. 6 کنٹینیو مارکیٹ میں ایک پازیٹیو سیشن دیکھے. جب مارکیٹ اتنا بڑھ جاتی ہے اور جب ریکارڈ ہائی کے پاس آتی ہے تو ہسٹوریکلی مارکیٹ میں کچھ پروفٹنگ دیکھنے میں آتی ہے. یہی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں اپ سائڈ کے اوپر سیلنگ آ رہی ہے، پروفٹنگ آ رہی ہے، وچ از ویری گڈ فار دا مارکیٹ. مارکیٹ کے لانگ ٹرم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. معیشت کے سبھی عوامل پر خشکن اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ IMF سے ہونے والے معاہدے کے لیے پہلے ہی سے موجودہ پیش رفت، چین میں وفاقی وزیر کے دورے کے بعد آئل اینڈ گیس سمیت ٹیکسٹائل اور مزید شعبوں میں چینی سرمایہ کاری، آٹو موبائل سیکٹر سے مثبت خبروں کا آنا، بیرون ممالک سے ریمیٹنس کی ترسیل میں ریکارڈ اضافہ اور درآمدی بل میں کمی وہ عناصر ہیں جو معیشت کے لیے موجودہ حکومت کی ہر زاویے میں درست سمت کی نشاندہی کرتے ہیں. دوسری طرف اکانومی کی بات کریں تو IMF کے ساتھ اجلاس ہونے جا رہا ہے 25 کو. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ IMF کا اجلاس ہے. موسٹ پرابلی پاکستان کو IMF کا پروگرام مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لینڈرز کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے پاکستان میں، اور چائنا سے بھی کچھ انویسٹمنٹس آنے جا رہی ہے. پھر بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے مصدق ملک صاحب کی چائنا میں آئل اینڈ
एंड कैश के हवाले से पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनीज के दरमियान जो माहिदा हुआ है उसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं मुल्क में दोबारा से ऑटो सेक्टर की जो सेल्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट देखने में आ रही हैं, रेमिटेंसेज इंक्रीज हो रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ओवरऑल इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि मज़बूत पॉलिसियों का तसलसल हर शोबे से मईशत के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Brother Ambassador Nawaf bin Saeed Al Malki, dear guest, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the government and the people of Pakistan, I warmly congratulate the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister, as well as the brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia on the joyous occasion of the 94th National Day of the Kingdom of Saudi Arabia. We pay tribute to the visionary leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz, who has steadfastly guided the kingdom towards progress and prosperity while upholding the sacred responsibilities of the custodian of the two holy mosques. We also highly commend the sagacious and far-sighted vision of His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, whose initiatives have positioned Saudi Arabia as a beacon of modernity, innovation and economic growth. The Kingdom of Saudi Arabia, with its Vision 2030 and the theme "We Dream, We Achieve," under the dynamic leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, is assuming a global leadership role. The kingdom is making remarkable strides in ease of doing business, surpassing the world's largest economies, embracing modern techniques. It is in fact amongst the countries that are leading in science, technology, innovation and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently championed the cause of justice, equality and peace. Its efforts to promote interfaith dialogue, understanding and cooperation through various international forums have been exemplary. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared values and enduring friendship that have stood the test of times through all these years. This relation is unique and goes beyond common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other in times of need, standing in solidarity during natural disasters and crisis, reflecting the depth of the fraternal bond that exists between the two countries. The people of Pakistan join me in acknowledging from the core of our heart the kingdom's generosity in helping stabilize Pakistan's economic situation from time to time. These historic gestures have touched us deeply and profoundly forever. As we celebrate this auspicious day with our Saudi brothers and sisters, I reaffirm Pakistan's commitment to a strong and enduring friendship between our two nations. We will continue to work together to promote peace, stability and development in the region.
May Allah bless the Kingdom of Saudi Arabia with continued prosperity, progress and success. Long live Pakistan Saudi Arabia Brotherhood. SIFC کی سہولتکاری اور بہترین حکومتی حکمت عملی کے باعث رواں مالی سال کے آغاز سے ہی پاکستان کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک کی تجارتی اشیاء کی برآمدات میں 14% اضافہ ہوا۔ اگست 2024 میں ملک کی برآمدات 62 کروڑ ڈالر اضافے کے ساتھ 5 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ برآمدات میں اضافے کی وجہ سے تجارتی خسارے میں 4.2% کمی واقع ہوئی ہے۔ مالی سال 2024-25 کے آغاز میں تجارتی خسارہ 3 ارب 75 کروڑ ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب 60 کروڑ ڈالر رہ گیا۔ اگست میں ہائی ڈیوٹی والی اشیاء جیسے گاڑیاں، گھریلو برقی آلات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی درآمد میں سالانہ بنیادوں پر 1.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ SIFC کی معاونت سے ملکی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے حکومت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے مسلسل جدوجہد اور مختلف اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ حال ہی میں ملکی برآمدات اور معیشت کے فروغ کے لیے تجارت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ تجارتی لبرلائزیشن منصوبہ جدت پسندی کا استعمال کرتے ہوئے برآمدی اشیاء میں اضافے میں مددگار ثابت ہوا۔ برآمدات میں اضافے، صنعتی بحالی اور صنعت کاروں کو مالی مراد فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم کے اس اقدام کی بدولت معیشت میں استحکام آئے گا۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات کی بدولت گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے بیرونی قرضے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ SIFC کی سہولت کاری سے ملک کی معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی حکومتی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے بعد پاکستان ریلویز کے مسافروں کی سہولت کے لیے کرایوں میں 10% کمی کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی ڈاہری۔ موجودہ جمہوری حکومت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے۔ جس طرح مسلسل مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن اور سفری سہولیات کو بہتر بنانا اور کرایوں میں کمی کے لیے پاکستان ریلویز نے ملک بھر میں ریلوے کے کرایوں میں 10% کمی کی ہے۔ ایئر کنڈیشنز، لوور ایئر کنڈیشنز پیسنجر ٹرینز کے مسافر اب پہلے سے کم کرایہ دے رہے ہیں۔ مسافروں کی بڑی تعداد ملک بھر میں انہی مسافر ٹرینوں میں سفر کرتی ہے۔ میں بنواکل سے آیا اور ماشاءاللہ اب یہ سنا ہے کہ 10% آپ سے جو ہے کمی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی باتیں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی افورڈ کرتا ہے، کوئی نہیں، تو اس حساب سے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ گورنمنٹ کا ہمارے لیے عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ریلیف دیا ہے۔ پاکستان ریلویز کرایوں میں کمی کے ساتھ ساتھ بزنس کلاس، کراکرم ایکسپریس اور گرین لائن سمیت تمام مسافر ٹرینوں میں دوسری سفری سہولیات دینے کے لیے بھی پرعزم ہے، اور حالیہ دنوں میں ملک بھر میں پیسنجر ٹرینز کے مسافروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ جمہوری حکومت نے مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر کے براہ راست فائدہ عوام کو دیا ہے، جس میں ریلویز کے کرایوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ شیراز علی ڈائری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ صدر آصف علی زرداری سے ازبکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر عبید عثمانوف نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاکستان اور ازبکستان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبے کے وسائل سیاست کی نظر کرنے کے بجائے امن و امان کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ پشاور میں وفاقی وزیر کی نیوز کانفرنس کی تفصیل بتائیں گے حمزہ سمان۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل اور عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کی سب سے اہم ذمہ داری صوبے میں امن و امان کا قیام ہے۔ سوات سے لے کر ڈی اے خان تک عوام کی جان و مال محفوظ نہیں۔ آپ کو اس صوبے کا اس طرح بیڈ امپریشن عوام میں نہیں پیش کر لینا چاہیے کہ اس صوبے کے عوام سارے دہشت گردی اور دہشت گردی چاہتے ہیں۔ اس صوبے کے عوام سارے محب وطن ہے، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے۔ ابھی دیکھو پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ مر گئے، پاڑا چنار میں لڑائی جاری ہے،
क्या चीफ मिनिस्टर ने कोई ट्राई की है, वही गया है, उसका एक मिनिस्टर गया है, कोई और गया है, वही लोग, अभी मैंने सुबह पूछ रहा था, कहते 30 से ज़्यादा लोग उस पर मर गए और जंग जारी है कई दिनों से। उसका तो कोई शौक़ है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं कि सूबे में क्या होना है, नहीं अपनी सियासत के शौक़ है, अपने यहाँ दुकान खोल दिए। वफाकी वजीर ने कहा कि PTI के रहनुमा नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपने इख्तियारात से वाकिफ नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क के साथ बातचीत सिर्फ रियासत पाकिस्तान ही कर सकती है। मैं ये बात करता हूँ कि उस चीफ मिनिस्टर की अभी तक ये बात नहीं है कि मैं ईरान और अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करूँगा और ख़ुद बात करूँगा। वो तो मुल्क और फेडरेशन के साथ है और वही बात कलेक्टिवली एफर्ट्स कर रहे हैं, सारे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर बात कर रहे हैं। मगर यह तो केस ही मुख्तलिफ है। आज़ादाना घूमे फिरे और साथ ही भी स्टेटमेंट दिया कि मैं अमन लाना चाहता हूँ, मगर किस जरिए लाना चाहता हूँ? अफगानिस्तान हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करूँगा, TTP से खुद मुज़ाकरात करूँगा। खुदा के बंदे, उनसे मुज़ाकरात, पहले तो आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है? आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह एक दूसरे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते। लोग मुज़ाकरात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ करती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करेगी। अगर आपने कोई गलती लास्ट टाइम की और वही मुज़ाकरात की तो आप देख रहे कि वही आज उसका क्या नतीजा और रिजल्ट निकला है सबके सामने, अवाम के सामने। तो मैं कहता हूँ कि उसको अपने इख्तियारात का भी पता नहीं है। उनसे मुज़ाकरात करूँगा और उसके ज़रिए अमन और पीस लाऊँगा। इंजीनियर अमीर मुकाम ने वफाकी हुकूमत की कामयाब महाशी पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क महाशी बहरान से निकल रहा है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बेहतरी पर सदमे में है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया है और महाशी पॉलिसियों की बेहतरी को तरजीह दी है। हमजा जमान, PTV न्यूज़, पेशावर। इत्तलात और नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में सुन्नी लॉबी को बानी PTI और उनकी जमात का ताउन हासिल है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इसराइली अखबार के आर्टिकल में कहा गया है कि बानी PTI इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसराइली अखबार के आर्टिकल की कड़ियाँ पाकिस्तान को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम करने की साजिश से मिलती हैं। हैरी रिचर्ड की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया वो इमरान खान साहब का नाम था, वो उनकी जमात का नाम था। और वो आर्टिकल क्या कहता है कि अगर इस रीजन में, अगर इस इलाके में इसराइल की कोई जो बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है या उनको बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो इमरान खान और उनकी जमात है। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा हो, जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही हो, तो कोई ना कोई तरीके के साथ हमारे मुल्क को कमज़ोर किया जाता है। और इस आर्टिकल की कड़ियाँ मिलती हैं आपके उन लॉबियस्ट फर्म्स के साथ जो अमेरिका में हायर की गई इंडिया से, वो इसलिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। उधर मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI और यहूदी लॉबी के गहरे मरासिम से मुतालिक अपने ठोस मौक़िफ़ पर कायम। टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट ने जो इंकशाफात किए उसका इजहार साल हर साल से कर रहा हूँ। अब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करने लगे हैं। मैंने तो ये बातें कोई 12-13 साल तक कही हैं और बड़े तसलसल के साथ कही हैं, और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, हमने अपनी राय का इजहार भी किया और अपनी राय का इसरार भी किया है। तो मेरे ख्याल में वो इजहार भी काफ़ी था और वो इसरार भी काफ़ी था। भारत ने मुतनाज़ा इलाके मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात को मामूल के मुताबिक जाहिर करने के लिए सरकर्दा ममालिक के तकरीबन 20 गैर मुल्की सफारतकारों को मकबूजा इलाके के दौरे की दावत दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस इकदाम को धोखा करार दिया जा रहा है क्योंकि सफारतकारों ने इंतखाबी ड्रामे से कबल बार बार दरखास्तों के बावजूद मकबूजा इलाके के दौरे की इजाज़त न देने पर एहतजाज किया था। नाक़दीन ने खास तौर पर अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद इंतखाबात की साख पर सवाल उठाया है। मकबूजा इलाके में मुतअद्दिद कश्मीरी रहनुमा, नौजवान, खवातीन, उलमा, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुन और सहाफ़ी मुसलसल नज़रबंद हैं। वो सफारतकारों के दौरे को बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की एक कोशिश करार दे रहे हैं जिसके बारे में बहुत से शुकूक व शुबहात पाए
पाए जाते हैं। कांग्रेस रहनुमा तारिक हमीद कुर्रा ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपने सियासी फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ न्यूयॉर्क में कश्मीरियों और भारतीय सिखों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के हक में नारे लगाए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी हर कीमत पर जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर कश्मीरियों की हालत इज़हार को उजागर करने के लिए वर्जीनिया में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई की क़यादत में एक इजलास हुआ, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ बात करते हैं लबनान की, जहां कई इलाकों पर इसराइली हमलों में 274 अफराद जाँ बहक जबकि 727 जख्मी हो गए हैं। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि हमलों में जाँ बहक और जख्मी होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और तिबी अमले के अरकान भी शामिल हैं। इलाके में एक बड़ी जंग शुरू होने के खदशात में इजाफा हो रहा है। जनूबी लबनान के लोगों को फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर लबनानी मज़ाहमतकारों की चौकियों से दूर चले जाएँ। इसराइल ने कहा है कि उसने लबनान में तकरीबन 300 अहदाफ को निशाना बनाया है। ये हमले दर्जनों कस्बों पर किए गए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अहदाफ के हुसूल तक हमले जारी रहेंगे। दूसरी जानिब लबनानी मज़ाहमतकारों ने कहा है कि उन्होंने शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं जिनमें अस्करी अड्डों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात के औकात में कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेज़बानी में स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप लाहौर में हुआ। कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान के अलावा खिलाड़ियों और कोचेज ने शिरकत की। एक रोज़ा सेशन का बुनियादी मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वासी और मुत्तफ़िक़ा विजन कायम करना है। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम के अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और रेड बॉल कप्तान शान मसूद समेत 9 क्रिकेटर्स इकट्ठे हुए। स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की तजवीज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दी थी। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। ख़वातीन क्रिकेट टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में लाहौर से दुबई पहुंची। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। टूर्नामेंट से कबल पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पहला वार्म अप मैच 28 सितंबर को स्कॉटलैंड और दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश के साथ होगा। इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में शामिल है। ग्रुप ए की दीगर टीमों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला कल से फैसलाबाद में शुरू हो रहा है। क्वालिफायर मुकाबले में मार्कोर्स और पैंथर्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। मुकाबला दिन 3 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। फातह टीम फाइनल खेलेगी जबकि हारने वाली टीम एलिमिनेटर 2 में पहुंच जाएगी। बुध को पहले एलिमिनेटर में स्टालियंस और लायंस के दरमियान मुकाबला हुआ। पहले एलिमिनेटर की फातह टीम एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई करेगी जबकि हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। मंगोलिया में वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के असद इकबाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में असद इकबाल ने मंगोलिया के क्विस्ट को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के दूसरे क्विस्ट अवैस मुनीर प्री क्वार्टर फाइनल में ईरान के सयावोश मोयाजानी से 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हार गए। बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।